सैक्रिफाइस करता हूँ जी। वेल सर, जैसे राजेश सर ने कहा अभी कि ये एक वेरी सिंपलिस्टिक रोमांटिक फिल्म है। एंड जब हम प्यार की बात करते हैं तो बेसिकली प्यार में होता क्या है? प्यार में आप खुशी पाते हो, प्यार में आप गम पाते हो, प्यार में आप अकेले हो जाते हो। सो जो भी जो इमोशंस होते हैं प्यार के साथ, आई थिंक हम लोगों ने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। एंड ऑफ कोर्स एंड में क्या होता है और किस मुकाम तक जाके, किस लेवल तक जाके आगम दीवान सैक्रिफाइस करता है, वो तो ऑफ कोर्स आपको 15 तारीख को ही पता चलेगा। Good evening to all. This is Raj, member of the press. I have to ask Alvin, what do you feel is your USP as a performer? I guess I have to ask that to my producer and to my director. My USP used to be that I'm an NRI. Now this film has changed it completely. It's maybe my USP is that's my USP. I'm very loud. And this for Mark Shea. How do you deal failure and success in your life? Sir, I believe that struggle is a very important part of every man's life. And if you don't struggle, you will not triumph. You will not, if you don't fall, you will not know how to rise. And I believe that given the opportunity, Nishka Daria, from my producer, Rajesh Banga, and from my director, Mr. V.K. Prakash, I believe that struggle is very essential to define a man. And I believe that it's because of my struggle and my fight that I've come this far. Hello, maybe my USP is versatile. Because Hello. She just remembered it. प्रकाश जी, इसी राजेंद्र सिंह फ्रॉम मकराना मैगजीन। आपने इतनी खूबसूरत जोड़ी सिलेक्ट की है, इसका सिलेक्शन कैसे किया आपने? और लोकेशन के बारे में बताइए। म्यूजिक बड़ा अच्छा दिया है इस फिल्म का, सब कुछ अच्छा है, लव स्टोरी है, अच्छी बात है, और थोड़ा इनका सिलेक्शन के बारे में बताइए। सर, लोकेशन ऑफ द फिल्म वाज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में शूट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपल फिल्म बनाने का मन था, तो मैं काफ़ी जगह गया, महाक्षय को लेके, एवलिन को लेके, अपने डायरेक्टर साहब को लेके। हमको लगा कि जो छोटे टाउन है वहाँ पर आज भी असली इंडिया बसता है। कहीं ना कहीं हम लोग डेविएट हो चुके हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़े शहरों में हम लोग मल्टी कल्चर में आ चुके हैं। तो हम लोगों ने हिमाचल ढूंढा जहाँ पर आज भी नेचर की प्योरिटी थी, जहाँ पर आज भी बड़ी सच्चाई थी, तो वहाँ पर लेके गए। इन दोनों को ढूंढने के लिए एवलिन एंड मीमो दोनों को मैं जानता था। जब ये स्टोरी मेरे पास आई तो मेरे को लगा कि एवलिन रहती जर्मनी में ज़रूर है, बट बहुत छोटे टाउन की एक लड़की है, एंड कहीं ना कहीं ये भी एक स्मॉल टाउन गर्ल थी फिल्म में, लवलीन। तो एवलिन को जब मैंने स्टोरी सुनाई तो कनेक्ट करा, बहुत अच्छा इसने, मीमो ने बहुत अच्छा कनेक्ट किया। देन आई गॉट माई डायरेक्टर टू चूज, सो आई थिंक ही विल ऑल्सो आंसर दैट कि क्या इनको नजर आया, तो इन्होंने इसी पे फाइनल किया इन दोनों को। No, actually what happened is, like, I met Midunda. Actually Midunda's, I've done earlier film with, worked with Midunda, and I'm very close to their family. And when they, actually Rajesh ji and Midunda got in touch with me to direct this film, so I heard the script and I liked the script. And then actually Mahesh Memo also, I know him from earlier time, like from Firkabi time. So we all know each other, all friends. Basically, I believe that, you know, when all friends get together and make a film, it'll speak more positive. And then actually what happened is, Evelyn came in, like, in the sense, he just, Rajesh told me, because Rajesh knows much better the industry and much better. So casting, all the credit goes to Rajesh ji, and he said, Evelyn, and then I suddenly Googled. And I saw Evelyn, and then I spoke to her, and then I came here and we met, and then we took a call. And then actually what we did is we did almost 10 to 15 days of workshop between both of them to develop the chemistry between them. And also to make it more improvisational skill, to more acting exercises we have tried actually. So almost 10 to 15 days we did a workshop, and then we got them into the shoot. The workshop we had to do. Thank you so much, sir. Thank you. The workshop we had to do, because he Googled me and all he found was pani pani, and he was like, Indian girl, what is, workshop. We have to do a workshop. No, but one thing, what happens is actually both of them, in performance point of view, what happened is we have shot the whole cinema with 2 cameras. So what happens is there is no cut shots, there is no just showing a hand and telling them to look at this and emote. Basically, I left both of them just to emote each other, and we covered it, captured it with 2 cameras.
So then the whole emotions comes out much better, I feel. मीमो, इस फिल्म का जो टाइटल है वो क्यों रखा गया, इश्कदारियाँ, उसके बारे में बताइए, और आपका कैरेक्टर मूवी में. वेल सर, कैरेक्टर के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, बट जो टाइटल है आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे. सर टाइटल क्या था कि इश्क की रिश्तेदारी इज इश्केदारी. कौसर मुनीर जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत खूबसूरत लिख रही हैं, वो बहुत अच्छे गाने कर रहे हैं, सुनो ना संगे मरमर, इशकजादे. सो जब ये फिल्म प्लान करी तो मेरे को था कि कौसर कुछ एक अच्छा कोई टाइटल, अच्छा कोई नाम दे, एंड शी माइट गिव मी समथिंग विच इज डिफरेंट. सो शी केम अप विद दिस वर्ड कॉल्ड इश्केदारियां. तो पहले मैंने पूछा क्या मतलब हुआ, तो कहती इश्क की रिश्तेदारियां. बिकॉज फिल्म में इतना बड़ा सेक्रीफाइस है. एक रिलेशनशिप में दोस्त दोस्त के लिए क्या सेक्रीफाइस करता है, फादर सन के लिए क्या करता है. सो दिस इज ऑल्सो वन लेवल ऑफ रिश्तेदारी, जहां पर जब ये नाम आया तो वी ऑल लव्ड इट एंड वी कॉइंड द नेम इश्केदारियां. और कैरेक्टर के बारे में तो मेरे कैरेक्टर का नाम है आगम दीवान. ही इज़ अ सेल्फ मेड मिलियनर. वो बिलीव करता है कि आप यू कैन ओनली राइज टू द टॉप अगर आप हार्ड वर्क करो. एंड बट जितना वो अमीर है उतना ही इज़ वेरी क्वाइट, बहुत ही हम्बल है, ही कीप्स टू हिमसेल्फ. और कैसे हालात उससे लवलीन से मिलवाते हैं और फिर उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है. बेसिकली दैट्स द इंटायर कैरेक्टर आर्क ऑफ आगम दीवान. जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी आपने कहा था कि आपको फिल्म में मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी लगातार फ्लॉप्स के बाद. तो इस फिल्म में ये फिल्म मिलने के लिए कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी? वेल टू बी ऑनेस्ट, जब राजेश सर ये फिल्म के साथ मेरे पास आए तो आई डिसाइडेड कि मैं एक लेवल तक पहुंच गया मेरे करियर में where definitely I want to do films, but I want to do the right films. I want to do good films. And जैसे आप देख रहे हैं हमारी जो टेक्निकल क्रू है, it's like impeccable. That is very strong. And जो कहानी थी इस फिल्म की, I think it was the simplicity which caught me. And I believe कि आज के ज़माने में जो हम लोग जैसे कहते हैं the WhatsApp generation, जहाँ पर आप स्माइली भेज के या फिर एक हार्ट भेज के you can proclaim your love. I believe कि हमारी फिल्म में we have gone back to the simplicity. And even for me as an actor, I wanted to try this film. I wanted to give this film a shot. और फिर ऑफ कोर्स वीके पी सर आए, जैसे उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने वर्कशॉप्स किए. वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक जैसे अभी आपने सुना है, शॉट इन वंडरफुल प्लेसेस. सो इट वाज एन एंटायर पैकेज फॉर मी. एंड आई बिलीव के as I told you earlier that struggle is very important and you got to keep on trying and win their hearts all over again. आप कह सकते हैं रोमांटिक फिल्म आप इसमें एक्सप्लोर कर चुके हैं, मतलब अच्छा कर पाएंगे एज ए रोमांटिक हीरो? देखिए, अच्छा कर पाऊंगा बुरा कर पाऊंगा, डेफिनेटली दैट इज अप टू द फैंस एंड द ऑडियंस. बट एज एन एक्टर आई एम वेरी कंटेंटेड विद इश्कदारिया, बिकॉज वीके बी सर ने जैसे हम लोग को बिठा के मुझे, मोहित, एवलिन, कविन सबको मिला के जो वर्कशॉप्स करवाई, जो लोकेशंस में हम लोगों ने शूट किया, जो एटमोसफियर था, आई थिंक इट्स टेकन ऑन द बेस्ट इन ऑल ऑफ अस. जब आप देखेंगे फिल्म, आई थिंक यू विल हाईली एग्री विद अस. प्रकाश जी, आपने मिथुन दा के साथ काम किया, मिथुन दा के साथ काम किया, मेमो के साथ काम किया. How different they both are in working styles and... No, actually it's like I'll rate if I say it, Midunda is a very intense actor, completely intense, and that actor with par excellence and experience. And Memo is an actor like impulsive, improvisational skill he has. At the same time, I'm sure that you will see a different Memo in this film. I'm very sure about it. Once you see it, we worked on his look and we worked on everything. And I just thought he's an internal actor. So there is a lot of external acting and internal acting it's concerned. So I think he's more into internal performances. So we're completely getting into the character as an internal insight of the character. And what traits he have from Mithun Da? What? Traits, I mean, what trait, common I traits think he both are I think different actors. Every actor is completely different. Maybe father, son, brother, but every actor has an individuality in performing. So I think he has his own style, and I think that is why we did workshop, to understand, how we should approach the whole thing, all that. Hello, nowadays there's a kissing scene in every film, every Bollywood film. Is there a kissing scene in this film? No, we didn't give a chance to them because we are always jealous. Directors won't give. I won't give. Prakash, do you think that... No, I'm jealous.
Why should actors only get that privilege? What about me? Hello, Prakash ji. Do you think that it will be turned as a Ashiki 2? No, we didn't make the film thinking of some other film. This is an independent film. This is an individual film. So it's just like that. There's nothing before or after we thought of about the film. It's a film by itself. Hello, Sharma. Tell us about your character. Yeah. Yeah. What is your character in the movie? I play the character of Loveleen. She's a school teacher in a small town in Himachal. She has only one goal in life, which is to run her school, which was her grandfather's dream, to run the school for less fortunate children. So for that, she always has to go around and get donations. She has to make sure that their life is settled. She's a very selfless person. For her, these kids and her family, her grandmother, comes first, and she only lives to take care of them. And one day, Agam comes into her life, and she thinks he's a new school teacher in her school. So that is her equation with him, and he becomes her best friend also in some sorts. And when he asks her, what do you want in life? She actually realizes that one thing she doesn't have, which is being settled with a husband. And of course, she realizes at this moment also that there is this boy in her life who has been there for some time now. He's really cute and he's very settled. So she says, Arjun. And that's my character. राजेश जी, since music इतना बढ़िया दिया आपकी फिल्म में, तो हम चाहते हैं जयदेव जी स्टेज पे आएं और कुछ अपना बायोडाटा बताएं हमें. जयदेव जी, कुमार जी प्लीज कम. कुमार जी प्लीज. सी म्यूजिक के पीछे बहुत बड़ा हाथ है कुमार जी का, जयदेव जी का. कुछ शेयर कीजिए कुछ अपना एक्सपीरियंस. कुमार जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स वी हैव इन द कंट्री. कुमार जी प्लीज कम. कंपोजिशंस के बारे में किस हिसाब से किया आपने, क्या सोच कर किया है? कुमार जी इधर आओ यार. This film started with राजेश जी. मैं अपने पंजाबी गाने एज यूजुअल बना रहा था और बनाते बनाते राह में ये मिल गए और बोले कि इस बार पंजाबी नहीं, आप एक हिंदी गाना बनाएंगे. तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि कैसे बनाएंगे. देन कुमार जी आए रात को 12 बजे. एज यूजुअल 12 बजे आते हैं सेटिंग पे. ये रात के 12 बजे आए और कहते हैं अभी 4 लाइनें दूंगा और अभी एक और सेटिंग पे जा रहा हूं मैं. तो रात के 12 बजे इन्होंने 4 लाइनें दी मुझे. आंसुओं ने नजर में जगह बनाई, जुदा वाला गाना. और रात के 1:30 बजे वो गाना हमने बना लिया था. और 1:30 बजे आई कॉल राजेश जी कि आप जागिए. और 1:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इनकी गाड़ी में ने गाना सुनाया. और देन अगले दिन मिथुन दा को सुनाया. सबने टीम ने सुना और ऐसे पहला गाना हमारा बना. मोहित पे लेकिन कुमार जी भी कुछ बोलेंगे इस बारे में. फिल्म का नाम इश्केदारियाँ, बट इससे पहले पाजी से हमारी यारियाँ हैं. तो ये फैमिली प्रोजेक्ट है हमारा. हम ऐसे जैसे प्रोफेशनल लिरिसिस्ट की तरह नहीं जुड़ा इस प्रोजेक्ट से मैं. और इसमें 2 गीत हैं, दस दे वे रब्बा एंड जुदा. जयदेव कुमार जी मेलोडी तो जबरदस्त बनाई इस गाने की. मैं यूं ही रैंडमली लाइंस फेंक के गया था पाजी के पास. कोई दिमाग में आइडिया नहीं, गाना बनाना रोमांटिक. तो मैंने 2 लाइन दी. पाजी ने रात को मुझे 1 बजे मेल किया गाना करके कि आप सुन लो. तो मैंने गाड़ी में सुना, मुझे लगा पाजी आपने काम कर दिया गाने का पिक्चर के साथ. तो मैं सबको ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन. आज म्यूजिक रिलीज था. राजेश पाजी से पहले हमारी यारियाँ हैं, उसके बाद आपसे इश्केदारियाँ भी शुरू हो गई हैं. थैंक यू वेरी मच. मोहित भाई, आपको ये फिल्म कैसे मिली? हाय, एक्चुअली मैंने ऑडिशन दिया था. तो ऑडिशन के बाद कॉल आया कि सब मिलना चाहते हैं. आई गॉट सिलेक्टेड. अच्छा, कैरेक्टर मोहित जी, कैरेक्टर क्या है आपका इस फिल्म में? हाँ, मेरा कैरेक्टर अर्जुन है. मैं सिंगर प्ले कर रहा हूँ इसमें. और लाइक ही वांट्स टू रीच हायर इन हिज लाइफ, वांट्स टू मेक बिग इन म्यूजिक इंडस्ट्री. एंड या Lovely's love interest. मार्क शाह, आप कोई भी फिल्म
चूज़ करते हैं या जब करते हैं उसके प्रोसेस में अपने पिता की कितनी हेल्प लेते हैं कैरेक्टर में घुसने के लिए? वेल कैरेक्टर में घुसने के लिए तो डेफिनेटली जो डायरेक्टर होते हैं, आई बिलीव दैट एन एक्टर शुड सरेंडर टू हिज डायरेक्टर. और जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आई थिंक डैड ने वेरी क्लियरली मुझे बता दिया है कि दिस इज़ योर ओन जर्नी, तुम्हें खुद करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो. एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू इफ़ यू नीड माई एडवाइस. ऐसा नहीं है कि हर फिल्म जो आती है मैं उनको स्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ, वो सुनते हैं और फिर वो अप्रूव करते तो मैं करता हूँ. उन्होंने कहा है कि ये तुम्हारी जर्नी है, यू विल फॉल, यू विल राइज, यू विल डू गुड, यू विल डू बैड, बट तुम्हें खुद करना है. बिकॉज यू हैव टू मेक योर ओन आइडेंटिटी. यू आर माई सन बट यू ऑल्सो हैव टू बी महाक्षय. तो सिलेक्शन प्रोसेस इज माइन अलोन. प्रोड्यूसर साहब और म्यूजिक डायरेक्टर से पूछना चाहेंगे कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पूरी फिल्म है म्यूजिक के ऊपर है, म्यूजिक से काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे, तो कितना प्रेशर है आप लोगों पे कि अच्छा म्यूजिक देना है? थैंक गॉड कि राजेश जी इज ए वेरी म्यूजिकल ईयर्स हैं उनके, और कभी भी इस बार की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई हमें. गाने बनते गए और वो गानों के साथ इंस्पायर करते गए हमें. तो गाने जब बने उसके बाद मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला गाना था, फिर राजेश जी और हम पूरी टीम कुमार सब ने बैठ के सोचा कि अब गवाएंगे इससे, तो अरिजीत सिंह जी आए. अरिजीत जी तब तक वो आशिकी के गाने आ गए थे, बट आई रियली लव हिम कि जब वो स्टूडियो आए तो ही वॉज सो सिंपल एंड हम्बल. वो 3 व्हीलर से आए थे और अंदर आगे कम से कम 3.5 घंटे तक इस गाने को उन्होंने टाइम दिया, और लास्ट में एवरीबडी वॉज स्टन की जो जिस तरीके से उन्होंने गाया है. मेरे को लगता है हमारी लाइफ का ये बेस्ट सॉन्ग उन्होंने दिया है हमारे. नहीं सर, कोई एक्शन नहीं है. इट्स अ लव स्टोरी. जैसे मैंने को बताया कि सिंपल स्टोरी है. हम अपनी लाइफ में एज इंडियंस कितना लड़ते हैं या कितना हम रोड पे डांस करते हैं, वो मेरे को लगता नहीं कितना कुछ करते हैं, बट बहुत सिंपल, बहुत खूबसूरत स्टोरी. जब प्यार से बात हो रही हो तो फिर लड़ाई की जरूरत नहीं है. वो तो पर्सनल, लेकिन हम इश्केदारियां की बात करते हो, पर्सनल इश्यूज हैं. भलाई सर मैंने काउंट नहीं किया, मैं लिखता जा रहा हूँ. मैं सफर में हूँ, पहुंचना मुझे कहीं भी नहीं है. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, गाने बहुत बनते हैं, रोज हम गाना बनाते हैं, रोज धुन बनती है, रोज हम गीत लिखते हैं, लेकिन राइट गाना पिक्चर के लिए सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात है. तो राजेश भाई ने वो गाना सिलेक्ट किया जुदा. तो अनुराग बेदी जी के जो हेड है, उन्होंने मुझे फोन किया, यार ये क्या कर दिया तू, क्लब सॉन्ग लिखते, ये रोमांटिक गाना कहां से आ गया तेरी लाइफ में. तो राइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म एक्चुअली. थैंक यू वेरी मच. ओके एवलिन, आर यू लर्निंग हिंदी? Yeah. Oh, again, hi. Are you learning Hindi? Or what? Are you learning Hindi? Learning Hindi? Of course I'm learning Hindi. I've done now 8 films. So I have to learn Hindi. And I hope if you ask my co-actors if my Hindi is fine enough to play the lead role in a film, which is a very chatty character by the way, then I hope I've learned now. Can you speak Hindi? मैं हिंदी बोल कर सकती हूँ. कोशिश है सर, कोशिश है. थैंक यू. लेकिन ग्रामर थोड़ा मुश्किल है. मीमो के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताइए. It was wrong, right? What I said? Was it wrong? Anyway, okay. It was very good working with Mimo Mahakshay, and I think we've grown very close as friends during this whole process of almost 2 years. When Ishkadariyan came to us through Rajesh ji, and of course I remember many things which we have worked together in front of the camera, but I think later on you always remember more the offset stories and the pranks you've played on each other. So I kind of remember these things more than the working. Well, the working we'll see on 15th. Yeah, you can see how we work together on 15th of May. Okay, thank you so much. So that was the last question of this question answer round. Thank you so much to all of you. So once again, thank you. Yes. So actually, a lot of people, a lot of friends have come here to wish us, and I really want to thank all of them. Yes, and one of thank my you. one of my oldest friend
who is one of the leading cameramen of Indian industry. Ravi K. Chandran is also here. Ravi, show. Yeah. Sachin sir, I just worked with a film called Shutter in Marathi, so he's also there. And all my Suresh Pai and Ravi Kemu has acted in our film. And Ravi Kemu and we go a long way because we studied in the theatre school together. So we're all, all friends. That's what I said. When friends get together, it'll be a positive film. Thank you. So once again, thank you so much to all of you. Thanks to all the team of Ishq Dariyam. And I request everyone, please join us for the refreshments outside. So once again. And can we have the music?